होती है तो शौकन मैक्स डार्क ऑलराउंडर चुनौती है चाहे कैसी भी हो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Do you see my backpack? Do you see my backpack? कैसा है? That's a badminton racket. हाँ, देखो वही ना बंद कर दो। बोल रहा है तो अभी प्ले करेंगे आप ये मोबाइल मेरे पास नहीं मेरे पास ही रखो थोड़ा पास आ जाए और पास बस आ रहा पूरा चलो ऐसे करते वीडियो बनाते हैं। हाँ कहाँ है मरकट ऐसे तो ये काम कर लिया साइड पे। अब क्या करते हैं कि मान लो कि साइड बेंड कर लेंगे। साइड बेंड मतलब साइड की एक्सरसाइज सारी है। साइड एक्सरसाइज कैसे होंगी रुके फर्स्ट तक शुरू करते हैं ऐसे मान लो ये 1 2 कमर कमर फॉरवर्ड बेंड तो करती है हमेशा स्टिचिंग मिलती है। हम लोग खड़े होकर भी करते हैं सामने से भी करते हैं तो अब साइड से करते हैं। एक बार 1 2 3 4 स्पाइन का मूव 5 6 7 8 9 ये कमर के लिए है। अब कमर की एक्सरसाइज के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट के लिए 1 फिर 2 फिर 3 और चाइल्ड पोज मैंने बाल आसन बनाया और अपने आप को रेस्ट किया। इसी पोजीशन पे बैक साइड पे 1 2 3 4 5 6 कमर को लचीला। और ये धीरे धीरे ये सब अंग्रेजी दवा की तरह नहीं है वही वजह है होम्योपैथिक दवा की तरह काम करती है। ये धीरे धीरे रोज करेंगे 2 बार 10 बार 50 बार और हर बार एक एक्सरसाइज को करने के लिए एक ब्रीदिंग के साथ उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि इनहेल अप एक्सहेल डाउन एंड होल्ड इनहेल अप चलिए कहाँ पे थे क्या बता रहे चाइल्ड पोज माउंट कोबरा पोज। हाँ ये हाँ हर बार क्या होता है योगा का पहला मतलब ये कि आपको सांसों के प्रति अवेयर रहना होगा। हर सांस के प्रति आप कब आप सांस ले रहे हैं कब आप छोड़ रहे हैं वो अवेयरनेस चाहिए होती है। अच्छा हर एक पोज में
हर पोज को सांस में बदल लो। ये बात बोलना हर बार करते करते बोलते नहीं है, पर ये ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी पार्ट है कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको सांस में बांध के रखे हैं कि नहीं, है ना। चलो, तो सांस के साथ इनहेल अप, ओके, फिर एक्सहेल, चिन और चेस्ट टच, चाइल्ड पोज, फिर कम भुजंगासन, चिन टच अप, हर बार सांस को लेना, फिर यहीं पे सांस छोड़ दिए चलेगा, वो एक बाउंडेशन बनेगा सांस का। फिर इनहेल, और सबसे अच्छी कमर की रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए और कमर को लचीला बनाने के लिए, कमर में अकड़न के लिए ये सबसे जरूरी पार्ट है करना, यही जो चाइल्ड पोज, भुजंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपर बॉडी का मूव होता है सामने की तरफ से मछली नुमा, और फिर वापस आता है दूसरी ऊपर की तरफ। ये हो गया आज इनसाइड, वो हो गया आज बैक साइड, यस, आगे ऊपर। इस बैलेंस रहती तो वो एंगल में तभी आएगी जब ये सब रोज होगा। इस बैलेंस क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे शरीर अकड़ा रहता है, शरीर में रोज बैठते हो तो अब लो हल्का सा टेढ़ी टेढ़ी सी रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा बैठने का काम है तो हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा मूवमेंट करो या कुछ भी करो। नेक्स्ट, हाथ ऊपर। अब स्पाइन को कैसे सीधा करना है, ये जो हल्का सा लचा रहता है बॉडी, हल्का सा ऐसा रहता है, तो ये करने के लिए सिर्फ एक काम, 1 2, अगर हाथ में कोई वेट ले लिया तो भी चलेगा, 2 3। ऑफिस वाले जितने हैं उनका सबका शोल्डर जो है वो हल्का सा ऐसे डाउन और पीछे हम्प निकला होता है, गोल गर्दन की जस्ट पीछे की साइड गोल गोल बना, जैसे कि घर में महिलाओं करता है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो ये है 1 2। नेक के पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर जो है काम करता है ये बैक एक्सरसाइज। अगर हाथ में कोई वेट है 2-4-5 किलो का तो भी चलेगा। हर बार ब्रीदिंग को कैसे बांधना है, इनहेल अप, हर बार बॉडी एक्सपांड होगी, खुलेगी, इनहेल, बॉडी क्लोज होगी, एक्सहेल। ये हमेशा तुम खुद ही अपने आप बनते ही चला जाएगा। जब ये बॉडी खुलेगी, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कोई आने वाला था आज हाँ यार, एक लड़की आने वाली थी, इसी के लिए कॉल आया था। नहीं ये लड़की नहीं है, ये तो नंदिनी है, उसके पहले वाला। हाँ उसके लिए वो आई नहीं, पता नहीं, नंबर तो ली थी, फोन भी आया था मेरे पास, आई नहीं। ओके, साइड से। अब स्पाइन को रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए क्या कहते हैं, साइड से उसको बोलते हैं, कौन सा पोज, उसको ऐसे करते हैं साइड में, और हाथ को पीछे रखे, अप और अप किया, 1 इस पैर को ऐसे सेट किया, अप हुए, 1। ये सबसे मज़ेदार पोज है कमर को रिलैक्स करने के लिए। सेम पोजीशन वही है, इसमें हमारे हाथ में कलाइयों में भी ताकत बढ़ती है क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पाम का, और अप हुए, ओके। एक पैर को इस तरफ रखा साइड में, हर बार उसको एक्सरसाइज को बांध के रखते हैं, इन्हें दूसरे लेग से 5 टाइम वो साइड करने हैं, 2 5 बार कर लें, यस। कलाइयों का यूज, पुशअप का यूज, कोई वेरिएशन, स्पाइन स्ट्रेट होगी, शोल्डर का मूवमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, ये पेट और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में कूप मंडूकासन होता है। ये पेट की नाभि होती है, यहाँ पे ऐसे कर लिए या फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दोनों अंगूठे को, दोनों को ऐसे रखे और अंदर की तरफ गया, हेड डाउन किया, 1 2 3 4, यस। ये काम करता है डाइजेशन सिस्टम पे। कैसे काम करता है, जब पेट सबसे बड़ी आंत होती है ना अंदर, ऐसे रहती है ना, उस पर प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाने के साथ साथ ये जो बीच का पॉइंट होता है, यही सारा काम करता है। जैसे अपना दिमाग होता है, सारा काम करता है, उंगली हिलाने का, बोलने का, ये काम करता है इंटरनल सारे काम करने के, इंटेस्टाइन को कैसे क्लियर करना, साफ करना है। इनर बॉडी पार्ट का काम यही से है। तो इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज के तौर पे इसको बंदूक में ऐसे लगाते हैं, इसीलिए कहते हैं इसमें तो ऑयल लगाया, इस पे ऑयल लगाइए, इस पे तेल लगाइए, क्योंकि ये एक जड़ पॉइंट है, रूट पॉइंट है ना। इसको मूल बंद बोलते भी है नीचे वाले पार्ट को।
तो वही वो वहाँ पार्ट काम करता है इनर बॉडी के। नीचे की तरफ गए, डाउन किए गए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड होल्ड किए, सांस को रोके। ये पेट को पहले साफ करता है। पेट में साफ करने का क्या मतलब है? आपको हल्के आप सुबह हो गए, फ्रेश हो गए, पर उसके बावजूद गैस बनने की शिकायत है, वही है पेट ना साफ होने की शिकायत। गैस बनना बुरी बात नहीं, गैस सबको बनती है, सब करते हैं, पर आप रोज आप फ्रेश भी अच्छे से हो रहे हो और फिर भी गैस बन रही है। फ्रेश होने पर गैस नहीं बनती है। तो कभी नोटिस करोगे कि अभी इस उम्र में अभी नहीं हो रहा है कुछ, ठीक, अभी कोई गैस का प्रॉब्लम, कुछ दिनों बाद जाओगे तो देखोगे यार गैस भी बन रही है। तो कारण क्या होता है कि पेट साफ नहीं होता है। अब पेट साफ करने के जो तरीके हैं वो है योगा आसन में कुछ प्रैक्टिसेस वो किए, या फिर क्या करें, भगवान के भरोसे छोड़ दिए, या तो फिर घर में खाए पिए। तो कुंभ के लिए आप शशांक आसन करते हैं। इस पोजीशन पर रख के अपने आपको पैर बाहर किया और ये एग्जैक्ट बाहर ऐसे शशांक आसन। ये चाइल्ड पोज की तरह है, पर इसमें पूरा बॉडी का पार्ट दोनों पैरों के बीच में रहता है, शशांक आसन। और रोज योगा करने के लिए यार रोज लाइव आता हूँ मैं, सब्सक्राइब लाइव कर ले आप। लाइव क्लासेस 7 to 8 AM रहती है। खैर अब नेक्स्ट जो हम लोग टेबल पोज करते हैं, सेतु बंद आसन। सेतु बंद में क्या करते हैं, पहले उठते हैं, 1 एक पोजीशन रहती है, पर अभी ये टेबल पोज है। 2 हम लोग आज कमर की बात कर रहे हैं, इसलिए कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। 3 हथेली का पूरा यूज, कमर का उठना, फिर का उठना, बैठना। इसी को सेतु बंद में अगर हम करते हैं वापस से उसी तरह से इस पोजीशन में रहते हैं, तो उठाते हैं अपने आप को। 1 2 ग्लूट्स ब्रीथ एक्सरसाइज, ठीक, सेम पोजीशन पे करो, ऐसे ही बैठ के आप हुए 1 2। ये कमर के साथ साथ पेट का इंटेस्टाइन को भी क्लियर करता है, आंत को भी साफ करता है। चलो ग्लूट ब्रीथ, सेतु बंद करते हैं, दोनों पैरों को पकड़ा, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ा, ऐसे बैठ के लेटो, दोनों पैर अंदर किए, रखा, अब उठे, वैसे ही फिर हाँ यस, ये पॉइंट ऐसे उठते हैं। भाई रोज ज्ञान लेना है, क्लास लेनी होगा कि फिट रहना है, तो फिर लाइव आता हुआ है, देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ये हो गया, ओके नेक्स्ट फिर से सही लेते हैं। मत्स्यासन में कमर के लिए चल रहा है, तो हम आज कमर के लिए कर रहे हैं। मत्स्यासन और मत्स्यासन में मत्स्यासन पहले बता देते हैं, वो मछली नुमा बनना होता है। ऐसे रुकते हैं सामने से और अपने पैरों को पॉइंट को, तो बिजली पैरों को यहाँ से सिर को पीछे किया, सिर पीछे हो गया, स्पाइन के बीच में कोई भी जगह और स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। स्पाइन में मतलब पीठ के बीच में दरार रहेगी, हमारा हाथ पैर जाए। अब क्या करते हैं, अपने थाई को पकड़ा और पैरों के ऊपर उठाया, 1 2 3 यस, सिर पीछे की तरफ, ये चंडुल वाला हिस्सा पीछे की तरफ, सिर का ऊपरी भाग पीछे की तरफ, यस। अब ये स्पाइन का मूवमेंट होगा, कुछ सेकंड ऐसे रुकते हैं, बाकी हाथ वेरिएशन नहीं करते हैं खाली, यस। यानी कि सिर पीछे रखे और हिप उठाए, हिप पे सपोर्ट से कमर को उठाते हुए ऐसे है ना, इस पोजीशन पे ये रखे, सिर पीछे रखे, 1 होल्ड करते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। मरकट आसन की वेरिएशन मैच पूरा आ जाए, सीधे ले जाओ, पूरा ले जाओ पीठ। मरकट आसन में क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया, एक पैर उठाते हैं, ये सारे कमर के रिलैक्सिंग पोज, ये स्ट्रेट किए और इधर साइड में लेकर आ गए, यस। हाथ को अपने पीछे ऐसे रखिए, यस। पैर को उठाया, उधर टच किया, हाथ अपना पीछे रखा ताकि कमर का ट्विस्टिंग मिले, वो जो रिलैक्स मिलता है वो तुमको फील करना होगा। पहले हर एक्सरसाइज फील करने की क्या किसको वर्क करता है, फिर किसको क्या करना है वो तुम खुद डिसाइड करिए। ये इधर ये एक वेरिएशन हो गया। दूसरा वेरिएशन ये फुल लेंथ में हो गया, दूसरा साइड से चाहे ऐसे ही चले जाओ, ये भी चलेगा, और फिर नीचे रख के वो पैर नीचे रख, वो पंजे तुम्हारे पैर के पंजे ऐसे नहीं, इधर आओ, यहाँ रखो। अब नीचे से जाओ, थाई एक तरफ टच करो,
यस, ये हुआ। अब उधर टच किया, अब सही होगा। तो यही होगा, क्योंकि कमर का हमें ट्विस्ट चाहिए, धीरे धीरे चाहिए, वो भी हर बार ब्रीदिंग के साथ उसका कोऑर्डिनेशन बना के। तो इसको कैसे करते हैं? सिर्फ 1 2 3 4 5। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज अगर आदमी 20 मिनट रोज करता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये खुद ही बॉडी के लिए सारा काम करते हैं। पहले तो नसों की ब्लॉकेज नहीं रखते हैं, कभी भी नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगी। खून का प्रवाह जो चलता है, हार्ट अटैक क्यों करता है? ब्लड में कुछ ना कुछ फंस जाता है ना, जाम हो जाता है। तो फिर भाई वो पंपिंग करना है, उसके रास्ते में खून आना चाहिए, कोई और तंत्र। अब वो गाढ़ा होता है क्यों? वो सिर्फ पेट की वजह से। वो गाढ़ा खून बनने का कोई तरीका थोड़ी है। कॉन्स्टिपेशन होता है, वो जमता है पेट में, जब पेट जो तो वो बनाता है गैस, वही बनाता है तरह तरह की बीमारी। वो धीरे धीरे मिलते हुए खून में चला जाता है। जब खून होने लगता है गाढ़ा, जिनका पेट खराब होगा ना, तुम कभी नोटिस करना किसके साथ प्रॉब्लम होती है। जिसका खून गाढ़ा हो या हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम हो, उससे पहले उसका पेट खराब होगा, लीवर सिस्टम ही खराब होगा पहले। तुम कभी नोटिस करना, ऐसे लोगों से खाली मिलते रहना और पूछते रहना, खाली अपने ज्ञान देने की जरूरत नहीं, खाली इतना जानना कि पेट में क्या दिक्कत है। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये दिक्कत है, तब उनके साथ भविष्य में वो भी दिक्कत आएगी। इसलिए पेट जो एक डायलॉग है ना, पेट सफा तो हर रोग दफा, तो बस पेट सफा रखना है। खून इसीलिए गाढ़ा होता है। कॉन्स्टिपेशन बनने के बाद ही आपके पास सारी बीमारी आती है। आपकी गैस निकल रही है, आपको लगता है यार ओके ओके ओके, बहुत ज़्यादा गैस निकलना ही ओके नहीं होता, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं पेट सही नहीं काम कर रहा है। पेट को रिलैक्स चाहिए होता है, खाना नहीं चाहिए होता, एक हफ्ते में एक दिन ब्रेक चाहिए होता है भाई, थोड़ा देर। वो भी तो काम ही कर रहा है। जैसे तुम कुछ भी खाते हो तो पेट में शुरू पचाने की क्रिया शुरू, जाते ही पचाने की क्रिया शुरू, इसीलिए तो ब्रेक कर करके खाते हैं हम लोग। आप कभी कभी नहीं खाते? हाँ, कभी कभी नहीं खाते? कभी कभी नहीं, एक ही दिन ही, किसी एक टाइम मिस कर दो, दोपहर का टाइम मिस कर दिया, रात का टाइम मिस कर दिया, तुमको नहीं लगा, फील नहीं अनहेल्दी लग रहा है, उसके बावजूद रात का लंच करना है, रात का डिनर करना है, सुबह का लंच करना है, सुबह का लंच करना है, ये और पेट सही भी नहीं लग रहा है। इस केस में कभी कभी ऐसे भी तो खाते हो हम, खाना तब आता है बाहर क्या, तब आता है वो पिंपल के रूप में। जब पेट अपसेट रहेगा तो कहीं न कहीं से तो किसी, या तो फिर किसी बीमारी के रूप में बाहर आएगा। मरगढ़ आसन कर रहे थे, उसके बाद फिर से लेटो पीठ के बल। हल आसन भी इसी का वेरिएशन। हल आसन में क्या करते हैं, दोनों पैरों को उठाते हैं, ऐसे लगते हैं, 1 2 3 4। ये हल आसन की वेरिएशन है। ये भी कमर के लिए काम करता है, कमर को रेस्ट करने के लिए और पाचन करने के लिए। स्पाइन के लिए तो है ही है, बिल्कुल स्पाइन ही के लिए है ये। स्पाइन माने कमर। धीरे धीरे मूवमेंट मिलेगी। जब भी हम बैक साइड की मूवमेंट करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट साइड की भी मूवमेंट करते हैं। मान लो हम लोग पीछे उल्टा घूम रहे हैं, अब कमर को चाहिए रेस्ट, तो इसके बाद ये करने के बाद आ जाना मर्जरासन, कैट पिन काउ। ये हो गया इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन। ये रिलैक्सिंग पोजीशन, ताकि कमर को हमने बैक साइड की तरफ भी मूव किया और कमर को हमने आगे की तरफ काउंटर मूव किया। हो गया। साइड से धनुरासन, हलासन किया, अब उसका काउंटर पोज किया। धनुरासन में क्या करते हैं, पीछे पैर पकड़ा, इधर पकड़ा और थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को ऊपर किया। 1 2। पहले हमने इसका काउंटर पोज किया था क्या करके, हलासन बना के, ठीक। धनुरासन करते हैं और हलासन की प्रैक्टिस दोनों साथ साथ। मान लीजिए 5 आपने हलासन की प्रैक्टिस किए, ये हलासन है और ये धनुरासन। धनुरासन क्या हो गया, बैक बेंडिंग पीछे की तरफ से स्पाइन मूव हो रही है, और हलासन में आपको विपरीत दिशा में अपोजिट। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इसलिए बना के रखते हैं ताकि कमर को वो प्रॉब्लम ना आने पाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसीलिए दोनों का काउंटर पोज मिक्सअप में करके चलते हैं।
और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती नहीं है, पर अगर कोई पोज योगा का करना है, कठिन करना है, फिर तो हार्ड वर्क ही चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं। और जो सबसे जरूरी बात है वो प्राणायाम है। प्राणायाम में कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, भस्त्रिका हो गया, और नीति क्रिया हो गई, जल नीति जल नीति का जो पाइप डालकर कैसे करते हैं, पर वो अपने लोग नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल सा बैठते हैं, सिंपल सा। और अच्छा उसे वो भी बोलते हैं, क्या चीज़ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पता नहीं हाँ, कहीं ध्यान नहीं आया। होगा। तो हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल सी सांस सूर्यवेदी चंद्रवेदी जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही चलते हैं। तो किसी एक नाक से सांस तो लेनी है, पर बिना आवाज़ किए ऐसे लेनी है। बिना आवाज़ किए सांस लेनी है। एक नाक को बंद किया और सांस को ये एक मेडिटेशन के रूप में जाने के लिए ना, पहला पैटर्न ये होता है कि आप ऑब्जर्वेशन रखें अपनी ब्रीदिंग पे। तो एक नाक से सांस लेनी है बिना आवाज़ किए, यानी कि वॉइस स्लो होगी, यानी कि स्पीड उसकी स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे एक नली से सांस जाएगी, फिर उसको क्लोज करके दूसरे वाले से छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे इनहेल करेंगे, फिर इससे छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम जो प्रैक्टिस करते हैं जैसे, तो इनहेल किया, यस, कपालभाति कैसे करते हैं? बैठे, कपालभाति से सबसे अच्छा काम करता है कपालभाति। जैसे कि हम लोग सूर्य प्राणायाम में नहीं, योगा प्रैक्टिस में सूर्य वो बोलते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो वो सारी बॉडी का मूवमेंट करता है। एक अकेला योगा आसन वो है सूर्य नमस्कार, वो सारी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, फिट करता है। वैसे ही एक अकेला प्राणायाम वो है कपालभाति, ये पूरे ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, ये काम क्या कर रहा है, पेट पे काम कर रहा है, तो ये पेट का ही काम सही करेगा। पेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इनर पार्ट में गर्दन से लेकर कमर तक में क्या जो भी चीज़ें हैं वो है अपना लंग्स, गुर्दा, ये फेफड़ा, और क्या नाम है, फेफड़ा मतलब फूलने पिचकने की जो क्षमता है, और हाथ है, गॉल ब्लैडर, ये सब है, ये सारे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को एक अलग, ये भी एक्सरसाइज है। हम लोग शारीरिक एक्सरसाइज, बाहरी व्यायाम करते हैं ना, हाथ से डंबल किया तो लगता है फिट हो रहा है ना, तो ये भी अंदर एक्सरसाइज है। इसके लिए कोई एक्सरसाइज तो है नहीं जिम के लिए, इसीलिए इस प्राणायाम को रखा गया है इनर बॉडी के लिए। तो ये कपालभाति सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है। हर बार कम से कम शुरुआत में 20, 30, 50 से स्टार्ट करे आदमी, 300 तक जाता है। एटलीस्ट 5 मिनट करेगा तो 300 हो जाता है, हो जाएगा। 2 सेकंड में एक बार तो हो जाता है। 5 मिनट में 300 बार से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 2 बार भी मान ले, अगर 2 बार भी होता है तो ऐसे समझो, कैलकुलेशन 2 सेकंड में एक बार होता है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 30 बार हो गया। 1 मिनट में 30 बार हुआ तो 5 मिनट में कितनी बार होगा? 1 सेकंड में 2 बार होते हैं। 1 सेकंड में 2 सेकंड में एक बार, 30 बार हो गया 1 मिनट, यानी कि 5 मिनट में 150 बार हो जाएगा। हाँ, तो 150 बार ही बहुत से, 10 मिनट लग जाएंगे। 150 से 200 के बीच में आ जाएंगे अगर 2 सेकंड में भी करते हो तो। पर जब ये वेरिएशन चलती है तो 1 सेकंड में ही खत्म हो जाती है। शुरू करके देखना।
पेट दर्द कर रहा है? अंदर से सांस की कमी इसलिए धीरे करते, बहुत तेज तेज करोगे मान लो ऐसे क्या बोलते हैं, आवाज कम हो जाए तो वेरिएशन नहीं होता। हम बहुत धीरे धीरे करेंगे। प्रैक्टिस मोड में ऐसे ही होता है, बहुत अच्छा से हम नहीं कर पाएंगे, ना करते हैं रोज तभी तो आएगा, जब करेंगे तब तो आएगा, इसलिए धीरे धीरे। ये हो गया। नेक्स्ट भस्त्रिका ऐसे होती है, यानी कि फेफड़ों में, लंग्स में अंदर हवा भरनी, हाथ ऊपर उठाते हैं ताकि ये खुल जाए तो और अच्छे से ऑक्सीजन आए अंदर, और एक्सहेल, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये फेफड़े के फूलने की चलने की क्षमता को बढ़ाता है। सारा काम उसी का है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, सांस फूलती है, रक्त तेज होता है और ऐसे 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 होना शुरू होता है। भस्त्रिका बोलते हैं भस्त्रिका इसको, ठीक है। और उद्गीत करते हैं, ओम। उद्गीत मतलब ओम का उच्चारण तुमको पता ही है, कभी कर रहे नहीं हैं आप एक भी बार, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता, कोई करते ही नहीं, हम भाग जाते हैं। ये सारे हम इसीलिए कहते हैं 45 मिनट एक्सरसाइज करो, 15 मिनट ये सब आखिरी के 15 मिनट यही करना चाहिए, पर वो एक्सरसाइज करते हुए नहीं आता होता तो एक्सरसाइज में जुटा रहता है आदमी। तो आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट इन सब चारों पांचों आइटम को देना चाहिए। आइटम ये सारी चीज़ें पर डे। और क्या, तो ओम करेंगे ऐसे, उद्गीत करने से दिमाग शांत। और इसको एक बार रफ करते हैं हाथ को, करने के बाद उसको आँख पे ऐसे रखते हैं ताकि हाथ में होती है एनर्जी, तो उस एनर्जी को अपने आँख के थ्रू अपने शरीर